Children, today we will start our revision of essay 1, okay, on page 13, first chapter, the back objectives. The first one is sentences. We all know कि what are sentences? A group of words that is arranged correctly and conveys some meaning, okay, जिसका कोई meaning बनता हो, उसको sentences बोला जाता है. A sentence ends with a punctuation mark and the full stop or question mark or an exclamation mark. Okay? सेंटेंस कभी भी एंड होता है तो ये 3 से ही एंड होता है. अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगा, और कुछ नहीं होगा तो फुल स्टॉप. अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, there are 4 types of sentences we all know. Assertive sentences, it makes a statement. Okay, there are 2 types of assertive sentences, affirmative and negative. Affirmative means जो positive sentence हो, और negative sentence मतलब जिसमें वो did not, do not, does not, okay, not जहाँ पे भी आता है वो negative sentence हो गया. Okay, जो negative meaning convey करता हो. All right, then we have interrogative sentence. Interrogative sentence means that ask questions. Okay, these can be WH questions that begin with words like when, why, who. Okay, or questions that begin with the helping verb like is, are, have. All right, they all are interrogative sentence, okay, which ends with the question mark. Then we have imperative sentence. It is used to express command, request, advice, okay, suggestion, order, कुछ भी, मतलब ये सारे जो भी आते हैं वो एक ग्रुप के अंदर आते हैं, that is imperative sentence. Then we have exclamatory sentences which expresses the feelings and emotions. ओके, जो अपनी अंदर की फीलिंग और इमोशंस को कन्वे करता है, दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, एंड इट ऑलवेज एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क. ऑलराइट, देन द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी हैव व्हिच इज वर्ड वाइज. ओके, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. सिनोनिम्स का क्या मतलब है? जो सेम मीनिंग होता है, और एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट्स. All right, synonyms and antonyms. All right, then on the next page we have punctuate. Punctuate with commas. Okay, we all know कि हम लोग को comma कहाँ कहाँ लगाना है. Okay, जहाँ पे भी हम लोग को pause देना हो sentence में, वहाँ पे हम लोग comma लगाते हैं. My friend's father, who had gone to London last month, has come back. ओके, हम लोग ऐसे नहीं बोलते माई फ्रेंड्स फादर हु हैड गॉन टू लंडन लास्ट मंथ हैज कम बैक. ओके, ऐसे हम लोग कभी भी रीड नहीं करते. हम लोग कैसे रीड करेंगे? माई फ्रेंड्स फादर हु हैड गॉन टू लंडन लास्ट मंथ हैज कम बैक. तो जहां जहां हम लोग पॉज करेंगे, ओके, वहां वहां कॉमा आएगा. ऑलराइट, whenever we say the sentence we have to pause. All right, then we will do of the next chapter. Okay, on page 18 उसमें क्या explain किया गया है? क्या है grammar portion में? Nouns. We all know that the noun is a word that is used to tell the names of the person, place, animal or thing. Okay, हम लोग खेलते हैं ना name, place, animal, thing. All right, तो उसमें हम लोग सारा nouns ही लिखते हैं. All right, now types of the noun, 5. Total 5 types of nouns are there. First is proper noun that tells the name of a particular person, place or thing. Then we have common noun, okay, which is a common name to person, place, animal, thing. जो common होता है, अगर हम लोग बोले डॉक्टर, तो डॉक्टर में मेल भी आएगा, फीमेल भी आएगा. ओके, फिर अगर हम लोग बोले प्लांट्स, तो प्लांट एक बड़ा ग्रुप हो गया और उसके नीचे बहुत सारे प्लांट्स के नेम्स आ जाएंगे. ऑलराइट, तो वो हो गया कॉमन नाउन. ओके, देन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच रिफर्स टू द क्वालिटी, फीलिंग और कॉन्सेप्ट.
विच कैनॉट बी सीन बट ओनली फेल्ट, जो फील कर सकते हैं हम लोग, ओके, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फिर है कलेक्टिव नाउन. इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग ऑफ सेम काइंड. मतलब एक टाइप के पीपल या थिंग या एनिमल को एक ग्रुप के अंदर जो डाल देते हैं उसको कलेक्टिव नाउन बोला जाता है. देन वी हैव मटीरियल नाउन. इट नेम्स द मटीरियल और सब्सटेंस, ओके, दैट इज यूजुअली यूज्ड टू मेक थिंग्स which we can touch. Material noun is which we can touch, जिससे कोई भी थिंग बना हो उसको मटीरियल नाउन बोला जाता है. ओके, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज वी हैव इज नंबर. नाउन्स नंबर. ऑल राइट, नंबर मतलब सिंगुलर या प्लूरल. सिंगुलर इट रिफर्स टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग. Plural it refers to more than one person, place or thing. All right, now the next exercise you all see, change the nouns in bold into singular. Okay, मतलब प्लूरल में दिया हुआ है, हम लोग को सिंगुलर में चेंज करना है. अगर हम लोग सिंगुलर में चेंज करेंगे तो वर्ब्स भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा. ऑल राइट, से फॉर एग्जाम्पल सेकेंड सेंटेंस देखो, देयर आर लोव्स ऑफ ब्रेड ऑन द टेबल. आर आ गया वहां पे, लोव्स प्लूरल है इसीलिए. तो अगर लोव्स को हम लोग लोफ में चेंज करेंगे, LOAF, ओके, तो आगे उसके आगे क्या लगेगा, इज लगेगा, तो वो भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा. तो सेंटेंस हम लोग का क्या बनेगा कि देयर इज अ लोफ ऑफ ब्रेड ऑन द टेबल. शी प्लेस्ड मैंगोज ऑन द टेबल. तो हम लोग का सेंटेंस क्या बनेगा, शी प्लेस्ड अ मैंगो ऑन द टेबल. ओके, तो ऐसे जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस होगा वो अपने आप हम लोग को करना पड़ेगा. ऑल राइट, देन ऑन द नेक्स्ट पेज वी हैव जेंडर्स. ओके, जेंडर्स मतलब क्या हुआ, जेंडर्स मतलब कि मेल है कि फीमेल है. ओके, नाउ देयर आर टोटल 4 जेंडर्स आर देयर. ओके, first is feminine gender. Feminine gender means female person or animal. Then we have masculine gender, that is male person or animal. Then we have common gender, जो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, मतलब दोनों, we cannot differentiate between the both. okay, जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया है स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर. तो स्टूडेंट गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है. टीचर गर्ल भी हो सकते हैं, बॉय भी हो सकते हैं. डॉक्टर गर्ल भी हो सकते हैं, बॉय भी हो सकते हैं. ऑल राइट, जो दोनों के लिए काम आता है, ओके, जो कॉमन है दोनों के लिए, वो आगे उसको बोला जाता है कॉमन जेंडर. ओके, देन वी हैव न्यूटर जेंडर. न्यूटर मतलब नाइदर मेल नॉर फीमेल. ऑल राइट, उसको न्यूटर जेंडर बोला जाता है. जैसे टेबल, बैग, पेंसिल, बॉटल, वो सारे नाउन्स ही है. राइट, दिस बॉटल इज मेड ऑफ प्लास्टिक, तो वहां पे बॉटल नाउन हो गया. राइट, लेकिन वो मैस्कुलाइन भी नहीं है, फेमिनाइन भी नहीं है, कॉमन भी नहीं है, तो वो न्यूटर है. ओके, तो वो कौन सा नाउन हो गया, वो न्यूटर जेंडर का नाउन है. ऑल राइट, देन we will come to the third chapter on page 28. okay, उसमें क्या है, adjectives है. the words that describe nouns or pronouns are called adjectives. okay, you just have to remember children that adjectives are friends of nouns. okay, वैसे ही याद रखना, adverbs are friends of verbs and adjectives are friends of noun. all right, तो adjective क्या है, जो describe करता है nouns को. all right, इसीलिए उसको friend of noun और pronoun बोला जाता है. then kinds of adjectives में we have quality, adjectives of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective, interrogative adjective and possessive adjective. ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या हो गया, इट डिस्क्राइब्स द काइंड और क्वालिटी ऑफ नाउन. ओके, गुड पर्सन, person. Okay, clean room, sweet rasgullas,
ऑलराइट, तो वो सारे नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कैसा है, वो नाउन कैसा है, तो वो हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. Then we have adjective of quantity. It tells us how much of a thing is there. They are used for uncountable nouns. Uncountable nouns means जो nouns हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन्स बोला जाता है. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ वाटर, गिव मी लिटिल वाटर. ओके, तो वो लिटिल वाटर मतलब कितना वो वाटर हम लोग को चाहिए वो हम लोग को नहीं पता है. अगर ग्लास ऑफ वाटर अगर हम लोग बोले तो उसमें हम लोग मेजर कर सकते हैं कि 1 ग्लास पानी चाहिए. ओके, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ऑलराइट, तो उसमें वो एडजेक्टिव नहीं हुआ. अगर मैं बोलूं कि गिव मी अ लिटिल वाटर, तो वो वाटर हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं. ओके, इसीलिए उसको अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है. और अनकाउंटेबल नाउन को जो डिस्क्राइब करता है उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोला जाता है. Then we have adjective of number. It informs us how many things are there. मतलब जो हम लोग काउंट कर सके. They are used for countable nouns. Okay, जो हम लोग काउंट कर सके. First 2 student. Okay, 2 of you please come here. तो हम लोग काउंट कर सकते हैं कि हाँ भाई 2 स्टूडेंट को टीचर ने बुलाया. Alright. Then we have demonstrative adjective. Are words such as this, that, those and these that point to the noun they precede. They precede का मतलब है जो noun को वो point out कर रहे हैं. ओके, अगर मैं बोलूँ that is my school, ओके, या that school is mine, तो that school, school क्या हो गया, noun हो गया. अब वो school को कौन सा word point out कर रहा है, that. ओके, तो वो that demonstrative adjective हो गया. Then we have interrogative adjective. Okay, these are the words such as which, whose and what. Interrogative मतलब question हो गया. Okay, which are asking the question. Okay, तो अगर noun के पहले question अगर question word अगर लगता है तो वो interrogative adjectives बोला जाता है. Then we have possessive adjectives. These are the words such as are, his, her, my and your. It indicates belonging. मतलब किसका है, it belongs to whom. Okay, तो उसको possessive adjective बोला जाता है. Alright, उसके बाद सारा एक एक्सरसाइज possessive adjective की है. Then we have degree of comparison. 3 degrees of comparison है, positive degree, comparative degree and superlative degree. ओके, पॉजिटिव डिग्री में इट इज यूज टू डिस्क्राइब वन आइटम, ग्रुप और पर्सन. एक ही आइटम को वो डिस्क्राइब करता है या ग्रुप या पर्सन को. कंपैरेटिव एडजेक्टिव इट इज यूज टू डिस्क्राइब 2 आइटम्स, ओके, और 2 पीपल और 2 ग्रुप्स. और सुपरलेटिव एडजेक्टिव इट इज यूज टू डिस्क्राइब 3 और मोर आइटम्स, ग्रुप और पीपल. ओके, तो वैसे हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं. ऑलराइट, पॉजिटिव डिग्री मतलब 1 जन, कंपैरेटिव डिग्री मतलब 2 जन और सुपरलेटिव डिग्री मतलब मोर देन 2. ओके, वहां पे सुपरलेटिव डिग्री लगता है. ऑलराइट, देन वी हैव द वर्ड वाइज ऑन पेज 29. ओके, इट इज द पिक वर्ड्स from the cloud and write the words similar in meaning together. Okay, मतलब एक word का 3 meanings है. Okay, then on the next page we have to use spellings are there, ER और OR, ये 2 लगाना है. All right.